નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે સંધ્યા। જોઈએ સમાચાર વિસ્તારથી। આજથી ફરી આગ ઓકતી ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળશે। પારો 2 થી 3 ડિગ્રી ઊંચકાશે, એટલે કે ગરમી વધશે। 7 દિવસ તાપમાન 40 થી 44 ડિગ્રી રહેવાની શક્યતા છે। રાજ્યના 8 શહેરોમાં તાપમાન 40 ડિગ્રીને પાર। રાજકોટમાં 44.4 ડિગ્રી તાપમાન સાથે સૌથી ગરમ શહેર। સુરેન્દ્રનગરમાં નોંધાયું છે 44.3 ડિગ્રી તાપમાન। ભુજમાં 43.8 ડિગ્રી, અમરેલીમાં 43.5 ડિગ્રી તાપમાન અને ડીસામાં 42.3 ડિગ્રી તાપમાન। અમદાવાદમાં 41.8 ડિગ્રી તાપમાન અને ગાંધીનગરમાં 40.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો થશે વધારો। દરિયાકાંઠા વિસ્તારમાં ભેજવાળા પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે। હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી પણ છે। ભારે પવન સાથે ઝરમર વરસાદ પડી શકે છે। 28 થી 30 એપ્રિલ વરસાદની આગાહી છે। આગામી 3 દિવસ સુધી વાવાઝોડા આવી શકે છે। હળવા વરસાદ માટે યલો એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે। તો 10 થી 20 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે। 29 એપ્રિલે દિલ્હી એનસીઆરમાં ખરાબ હવામાનની પણ આગાહી છે। 30 અને 1 એપ્રિલે પણ હવામાનમાં ફેરફારની શક્યતા છે। રાજ્યના હવામાન અંગે સૌથી મોટા સમાચાર। હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી। હવે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થઈ શકે છે। પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી 30 એપ્રિલથી શરૂ થશે। 30 એપ્રિલથી વાદળો આવવાનું પણ શરૂ થશે અને 10 મેથી રાજ્યના ઘણા ભાગમાં પલટો પણ આવશે। ભારે આંધી વંટોળ ગાજવીજ સાથે વરસાદ થશે। હવે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે અને પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી લગભગ તારીખ 30મી એપ્રિલથી વાદળો આવવાની શક્યતા રહેશે। ક્યારેક તો હમણાં વાદળો આવવાની શક્યતા રહેશે, પરંતુ મે માસની લગભગ 10-11 તારીખ સુધીમાં રાજ્યના મોટા ભાગના ભાગોમાં ભારે ગાજવીજ, આંધી અને વંટોળ સાથે કમોસમી પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે અને આ વરસાદમાં ભારે પવન ફૂંકાશે, જેના લીધે બાગાયતી પાકોની હરકત આવી શકે। આંબા જેવા પાકોને પણ તેને જે મોર કેરી ખરીદવાની શક્યતા રહી શકે। તારીખ મેની શરૂઆતથી 3 મેની આસપાસથી જ ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો, રાધનપુર, કેટલાક સમીના ભાગો, હળીના ભાગો, બનાસકાંઠાના ભાગો, મહદ ભાગોમાં તારીખ લગભગ 30 એપ્રિલ પછી હવામાનનો પલટો આવશે અને 30 મેથી 11 મે વચ્ચે ભારે આંધી, વંટોળ અને ગાજવીજ સાથે રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે। આંધી વંટોળનું પ્રમાણ વધુ રહેશે, 10 ટન વધુ રહેશે। તો ન્યૂઝ 18 જમ્મુ કાશ્મીરના રજૌરી પૂંછ વિસ્તારમાં એલઓસી નજીક પહોંચ્યું છે, જ્યાંથી પાકિસ્તાનનું કોટલી ગામ હમીરપુર માત્ર 5 કિલોમીટર દૂર છે। સૂત્રોનું માનીએ તો સેનાએ પાકિસ્તાનનું કોટલી ગામ ખાલી કરવામાં આવ્યું છે। પાકિસ્તાની સેના હાલ સિવિલ કપડામાં કોટલી ગામમાં તૈનાત છે। नौशहरा से रजौरी, रजौरी से पुंछ विभाजन से पहले का समय सिर्फ 1.5 घंटे का हुआ करता था, लेकिन किलोमीटर का फासला बढ़ा क्योंकि कंटीली तारों ने अपना दायरा विभाजन के बाद यहाँ पर बना लिया था और उन्हीं कंटीली तारों के पास हम यहाँ पर मौजूद हैं। इन कंटीली तारों के उस पार गांव कोटली है और इसी कंटीली गांव के इस पार गांव रजौरी नौशहरा है। बता दें कि सिर्फ 29 और 35 का ही फासला था। 29-35 किलोमीटर के इस फासले के बाद जो कोटली गांव के आपने दृश्य देखे, वो गांव इस समय पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। ये फेंसिंग के उस पार जो है लोग भी नजर आएंगे और फेंसिंग के उस पार आपको वो जानवर भी नजर आएंगे जो यहाँ पर घास चर रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ ऐसा पुराना समय बयां कर रही हैं कि कैसा वो विभाजन का समय हुआ होगा, जब लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, फायरिंग हुई, गोलाबारी हुई, कुछ लोग वहां चले गए, कुछ लोग यहाँ हो गए, चाचा यहाँ रह गया तो भतीजा वहां पहुंच गया, तो इस तरीके के कुछ संबंध जो बन गए। लेकिन पीओजे के वापस आएगा, ऐसा यहाँ के लोगों ने कहा। पूरी उम्मीद है, इसी विश्वास से जो कोटली और अमीरपुर का साइन बोर्ड था, वो जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वो हटाया नहीं गया। दिवाली के दिन अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं,
घर सजाते हैं, उसी तरीके से कोटली हमीरपुर के पुराने बस स्टैंड का विभाजन से पहले जो बस स्टैंड बना था उस बोर्ड की भी सफाइयां जो है वो करते रहते हैं, उसको भी मेंटेन करते हैं। कारण क्या कि विश्वास पूरा है कि एक ना एक दिन पीओजे के वापस आएगा। चूंकि हम कोटली गांव में है, भारतीय सेना की चौकियां यहाँ पर दिख रही हैं, फेंसिंग आपको दिख रही है, छुटपुट घर आपको दिख रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर यही नहीं, जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमने देखा कि हमारी गाड़ी में जो एफएम चल रहा था वो पाकिस्तान के कोटली और हमीरपुर का चल रहा था। लोकेशन कोटली और हमीरपुर आ रही थी। जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हमारे टॉवर्स बिल्कुल बंद हो गए और पाकिस्तान के टॉवर हमारे फोन में आने लगे। अब ये बताता है कि 5 किलोमीटर की दूरी पर जहां हम जीरो लाइन पर हैं, यहाँ पर सिग्नल पाकिस्तान का आता है, क्योंकि कोटली गांव मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फेंसिंग में आपने देखा कि ज्यादा दूर फेंसिंग नहीं है। यही नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, जिस टॉवर की बात कर रही हूँ, जिन सिग्नल्स की बात कर रही हूँ, टॉवर भी यहाँ पर मौजूद है। हमारी तस्वीरों में साफ आप पाकिस्तान के उस पहाड़ी पर, जिस ये पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान का पूरा गांव है, कोटली है, हमीरपुर है, और ये जो टॉवर आप देख रहे हैं, इसी टॉवर के सिग्नल जो है इस गांव में, जो कि 13 किलोमीटर के दायरे के बाद ये गांव शुरू होता है। इस समय जहां हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक घने जंगल है। एक रास्ता वो तय करके हम जब गाड़ी में आ रहे थे तो हमने देखा कि घने जंगल और चीड़ के जो वृक्ष हैं उनको पार करते हुए जब हमने कोशिश की कि कोटली गांव चलते हैं और दिखाते हैं कि वहाँ का हालात क्या है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पता ही चला है कि कोटली गांव जो है पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। वजह क्या है कि पाकिस्तान अब बौखला चुका है। केंद्र सरकार के कड़े निर्णय के बाद अब पाकिस्तान को यह डर लग रहा है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और पाकिस्तान को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उड़ी का बदला लिया, पुलवामा का बदला लिया, पहलगाम का बाकी है, और यही वजह है कि वहां के लोग जो है वो वहां से हटा दिए गए हैं, स्थानीय लोग। और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पठानी सूट और सिविल कपड़ों में वहां पर नजर आ रही है। कोटली गांव हमीरपुर खाली तो कर दिया गया है, लेकिन अत्याधुनिक हथियारों के साथ पाकिस्तान की सेना वहां पर सिविल कपड़ों में मौजूद है। सिविल कपड़ों में क्यों मौजूद है? क्योंकि डर और बौखलाहट उनके अंदर भी है। बचने बचाने के लिए, खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसके लिए पाकिस्तानी सेना जो है वो वहां पर मौजूद है। तस्वीरों में फेंसिंग देखी और यहाँ पर कोटली गांव के उस 5 किलोमीटर के दायरे में इस समय न्यूज़ 18 इंडिया है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि विभाजन के पहले का समय कैसा था, विभाजन के समय का बाद का समय कैसा है, और अगर अभी युद्ध होता है तो कोशिश यही होगी कि पीओजे के वापस आए, जिसके लिए केंद्र सरकार हमेशा से ही बात करती है कि पीओजे के भारत का हिस्सा है और भारत को वापस मिलेगा। यहाँ के लोगों ने कहा कि कोटली और हमीरपुर का साइन बोर्ड इसीलिए नहीं हटाया क्योंकि पूरा विश्वास है कि सरकार उनको पीओजे के वापस लौटाएगी। कोटली गांव से, और कोटली गांव से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी से ये ग्राउंड रिपोर्ट। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, ग्राउंड जीरो। ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે વધેલા તણાવ વચ્ચે ન્યૂઝ 18 પહોંચ્યું એલઓસી નજીક આવેલા છેલ્લા ગામ તલાવારી। એલઓસી પર નજીક આવેલી શાળાની મુલાકાત લીધી અને શાળાના આચાર્યનું કહેવું છે કે યુદ્ધની સ્થિતિમાં શાળા પર ગોળીબારી થાય છે। ફરી તણાવ વધતા બાળકોના વાલીઓમાં પણ ડરનો માહોલ છે। શાળાનો સ્ટાફ પણ સતર્ક છે। सरहदों और लाइन ऑफ कंट्रोल पे तनाव है। जी हां, जब से पहलगाम अटैक हुआ तब से सरहदों के साथ साथ पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में बहुत ज्यादा तनाव है। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त तिल्लावारी इलाके में हूं। ये मिडिल स्कूल तिल्लावारी है। ये इंडियन साइड से जो एलओसी है उसका आखिरी गांव है और यहाँ पर साथ में ही पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट्स हैं और जब भी यहाँ पे पास्ट में फायरिंग हुई है, शेलिंग हुई है, तो ये पूरा इलाका ज्यादा प्रभावित हुआ और इस स्कूल के इर्द गिर्द गोलियां लगती हैं जब स्मॉल आर्म्स से पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट से फायरिंग की जाती है। जब वो सीज फायर वायलेशन करते हैं फिर इंडियन आर्मी रिटालिएट करती है, तो आपस की फायरिंग में यहाँ पर ये पूरा एरिया प्रभावित होता है। हालांकि आज ये स्कूल बिल्कुल रवां दवां है। क्लासरूम्स में आप देख सकते हैं बिल्कुल बच्चे हैं, पढ़ाया जाता है, यहाँ पे टीचर भी तैनात हैं स्कूल में, लेकिन तनाव जरूर है। जितने भी टीचर्स हैं उनको खदशा लग रहा है कि अगर जंग से हालात पैदा हुए तो वो प्रभावित हो सकते हैं। हेडमास्टर साहब मेरे साथ में हैं। आपका नाम? मुनीर अहमद। मुनीर साहब, अभी क्या माहौल है? माहौल तो अभी जब से ये अटैक हुआ है पहलगाम का तो तनाव भरा ही समझो। गांव के अंदर जो लोग हैं डरे समय हैं कि कहीं फिर से वो हालात न हो जाएं जो इससे पहले के थे, सीज फायर से पहले। तो ये हमारे साइड से आखिरी गांव है, ये यहाँ आखिरी और आखिरी स्कूल भी है, लास्ट पॉइंट पर, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये स्कूल ये आखिरी स्कूल भी है। और जब भी ऐसा कोई पहले अगर मैं बात करूँ इसके सीज फायर की पहले की बात, तो ये स्कूल अक्सर मुतासर रहता था। जितना भी फायर पाकिस्तान से आता वो सीधा इस स्कूल पे आके लगते थे, छोटे या बड़े फायर, और हमें स्कूल जो है कई दिनों तक बंद रखना पड़ता था।
तो आप समझ सकते हैं ये वो स्कूल है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर आखिरी स्कूल है हमारे साइड से, और ये पास्ट में प्रभावित रहा है क्योंकि जब फायरिंग होती है इस स्कूल में छुट्टी होती है, लेकिन गोलियां जो हैं न जाने कितनी गोलियों के निशान इस स्कूल के इर्द गिर्द होंगे जो पास्ट में फायरिंग हुई है, सीज फायर वायलेशंस होती रही हैं, छोटा आर्म्स का फायर हो या मोटार शेल्स हो इस एरिया में लगे हैं। काफ़ी सारे लोग जो हैं मारे भी जा चुके हैं, यानी सिविलियंस की मौत भी हुई है इस एरिया में पाकिस्तानी आर्मी की फायरिंग से। लेकिन आज इस पूरे एरिया में तनाव है, आप देख सकते हैं। हालांकि बच्चे यहाँ पे क्लासरूम्स में हैं और हम फिर से बात करेंगे हेडमास्टर साहब के साथ। आप हमें बताइए कि अभी क्या सोच रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स में भी थोड़ा सा कंसर्न होगा कि कहीं फायरिंग ना हो? हाँ बिल्कुल, ये तो है कि कहीं फायरिंग ना हो। हमें 10 बजे या 9:30 बजे स्कूल लगता है तो पहले ये फ़ोन आ जाता है पेरेंट्स का कि सर ध्यान रखिए, हमने सुना जी अभी फायर होने वाला है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो बच्चों को जल्दी घर भेज दें। तो यहाँ से बच्चों को घर भेजना भी, क्योंकि बॉर्डर एरिया है, अगर खुदा न खास्ता अचानक से फायर शुरू हो जाता है तो बच्चों का घर पहुंचना भी मुहाल हो जाएगा। और यहाँ कोई हमारे पास इतना कोई ये डिफेंस है नहीं कि यहाँ पे वैसे कुछ बंकर्स होने चाहिए थे बच्चों के। बंकर्स तो स्कूल के लिए होने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से ये यहाँ नहीं बन पाया। गांव में तो है 2-3 बंकर्स हैं जो कम्युनिटी बंकर्स जिनको कहा जाता है, तो वो भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से वहाँ तक पहुँचना जो है बड़ा दुश्वार होगा उस वक्त। देख सकते हैं आप बच्चों में जरूर तनाव होगा, बच्चे सोच रहे होंगे, लेकिन मैं अभी कह दूं यहाँ पे बिल्कुल हालात यहाँ पे नॉर्मल है, तनावपूर्ण है, लेकिन कामकाज स्कूल में हो रहा है। जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी क्लासरूम्स हैं, टीचर्स क्लासरूम्स में हैं। ये आखिरी स्कूल है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये तिल्लावारी मिडिल स्कूल है और यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हैं क्लासरूम्स में हैं। लेकिन बच्चों के पेरेंट्स में बड़ा कंसर्न रहता है, टीचर्स में भी बड़ा कंसर्न रहता है, क्योंकि ये वो स्कूल है लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिसके बिल्कुल आमने सामने पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट है, और जब वहाँ से फायर आता है तो वो सीधे यहाँ इस एरिया में लगता है। न जाने कितनी गोलियों के निशान इस स्कूल के इर्द गिर्द लगे होंगे। जिस तरीके से हेडमास्टर साहब ने भी कहा, ये वाला जो माउंटेन है ये इंडियन साइड से आखिरी लाइन ऑफ कंट्रोल का माउंटेन है, और वो जो इस यहाँ से हालांकि बाहर से दिखेगा, मैं कोशिश करूँगा दिखाने की, तो वो वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट्स हैं। ये हाजी पीर का सेक्टर है, सजीवारा एरिया है जो उस पार से इस एरिया को बोलते हैं, और हमारे साइड से इसको बोलते हैं हाजी पीर सेक्टर। तो ऐसे में इस तरीके का माहौल इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द है, और न्यूज़ 18 इंडिया की टीमें लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जगह जगह पर फैली हुई, और सिचुएशन का हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। और क्या होंगे हालात किसी को नहीं मालूम, लेकिन जिस तरीके से भारत का स्टैंड क्लियर है कि जवाब दिया जाएगा, क्या एक बड़ी जंग होगी, क्या एक ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पाकिस्तान के लिए एक सरप्राइज होगा, किसी को नहीं मालूम। लेकिन हमारी नज़र लगातार इन हालात पर बनी हुई है। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, LOC। અને હવે વાત કરીશું ઓપરેશન ક્લીન સિટીની। અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં મોટી કાર્યવાહી, ગેરકાયદેસર વીજ જોડાણને લઈને કાર્યવાહી કરાઈ છે। વીજ કંપનીએ ગેરકાયદેસર જોડાણ કાપી નાખ્યા છે। વીજ વિભાગની પોલીસ સાથે રાખી કાર્યવાહી છે। પોલીસ કમિશનર GS મલિકે ચંડોળા ઘટનાસ્થળની આ મુલાકાત પણ લીધી। પોલીસ તપાસ દરમિયાન 143 લોકો ગેરકાયદેસર અહીં વસવાટ કરતા હોવાનું સામે આવ્યું। પોલીસ દ્વારા આ તમામ લોકોને ડિપોર્ટ કરવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને આપણી સાથે શહેર પોલીસ કમિશનર છે, એમની સાથે વાત કરી। સર, કયા પ્રકારનું ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે? સર અને આ તો વિઝિટ કરવા માટે આવ્યા છીએ। સર, કઈ કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવામાં આવશે? આ જુઓ તમે, આખા એ તલાવ છે અને અહીંયા બધું એન્ક્રોચમેન્ટ છે। અહીંયા જે ઇલીગલ બાંગ્લાદેશીઓ રહેતા હતા, અહીંયા અત્યારે એના વિરુદ્ધ કાયદેસર કાર્યવાહી આપણે કરી રહ્યા છીએ। તો આ જુઓ તો તમે, બહુ મોટા એરિયા છે અહીંયા આખા તલાવ, અને પાણી આમાં છે નહીં અત્યારે, પણ આખા એન્ક્રોચ કરેલા છે। સર, ખાસ કરીને જે દબાણની વાત છે, તો દબાણ કયા પ્રકારે હટાવવામાં આવશે કોર્પોરેશનને સાથે રાખીને? ને એ તો કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। અગાઉ પણ અહીંયા આ એરિયામાં કાર્યવાહી થઈ હતી, 2009-10 પણ કાર્યવાહી થઈ હતી, ફરી એન્ક્રોચ થઈ ગયા છે, તો એના વિરુદ્ધ આપણે કાર્યવાહી તો કરવામાં આવશે। હાલમાં તો આપણે જોઈએ કે અહીંયા હાલમાં શું પ્રવૃત્તિઓ છે। સર, આપ અહીંયા આવ્યા છો, મુલાકાત લીધી છે, કઈ કઈ બાબતો આપે ધ્યાનમાં લીધી? કેમ કે આ વિસ્તાર ભલભલાને આમ એ કરી દે। અને એ મોટા ભાગે અહીંયા જે તમે જુઓ તો બાંગ્લાદેશીઓ આવીને બહુ આ જાણીતા છે એરિયા, કે અહીંયા के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी दे गया।
भागता तो कौन उसको कुछ कहता। भागने के बजाय खतरे की तरफ गया। इस तरह के और मिसाल हैं जिनके बारे में आज हम सुनना शुरू कर रहे हैं। जो टूरिस्ट वहां से निकले उन्होंने अब जिक्र करना शुरू किया। किसी एक ने वहां लोकल पोनी वाले को कहा कि मेरी बीवी और बच्चे को ले जाओ, इनको बचाओ, मुझे यहां छोड़ दो। उसने कहा मैं ना आपकी बीवी को कुछ होने दूंगा, ना आपके बच्चे को कुछ होने दूंगा, ना आपको कुछ होने दूंगा। इनको कुछ होने से पहले इनको मेरे ऊपर से गुजरना होगा। और छुपा के उनको सलामत रखा। जख्मियों को अपने कंधों पे पहाड़ से नीचे उतार के अस्पताल एम्बुलेंस तक पहुंचाया। और उसके बाद जिस तरह लोकल लोगों ने मदद करने की कोशिश की, गरीब वो शिकारा वाला जो डल लेक पे फल बेचता है, उसने अपनी किश्ती पे एक छोटा सा बोर्ड लगाया, टूरिस्टों के लिए मुफ्त फ्रूट चाट। अरे ना, वो दिन के 200-300 रुपए कमाने वाला, वो कहता है कोई नहीं ना चले मेरे हफ्ते की कमाई, लेकिन मैं कम से कम अपने मेहमानों को यह एहसास देना चाहता हूं कि हम उनके साथ हैं। वो 3 व्हीलर वाला ने टूरिस्टों को कहा कि अगर आपको हवाई अड्डा पहुंचना है, मैं मुफ्त आपको हवाई अड्डा पहुंचा दूंगा। इसी तरह की टैक्सी वाले, होटल वालों ने अपने कमरे खोले और कहा आप यहां रहिए। जिन्होंने गुलमर्ग छोड़ के, पहलगाम छोड़ के, सोनमर्ग छोड़ के श्रीनगर भाग के आए, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, होटल वालों ने उनको कहा कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, आप रहिए यहां पे। मैं सलाम करता हूं। यही है हमारी मेहमान नवाजी। उसके साथ साथ उनका शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने ये किया। जम्मू कश्मीर के बाहर हमारे कुछ स्टूडेंट्स, हमारे कुछ रहने वालों को कुछ जगहों पे तकलीफ हुई, उससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन मैं उसके साथ साथ उन तमाम रियासती हुकूमतों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मौके पर तहकीकात करके हालात को काबू में लाने में अपना रोल अदा किया। मैं अपने मिनिस्टर कुलीग्स का शुक्रिया करता हूं जिन्होंने बिल्कुल कम नोटिस पे जगह जगह गए। कोई शिमला, कोई लखनऊ, कोई देहरादून, कोई बंबई, कोई चंडीगढ़। वहां की हुकूमतों का मैं शुक्रिया करूंगा कि इनसे मिलने के बाद इन्होंने मीटिंगें ऑर्गेनाइज की। हम अपने तरफ से एक सिस्टम जो है वो तैयार करना चाहते हैं, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह का इस्तेमाल करते हुए, ताकि एक नोडल पॉइंट हमें मिले। हम तो चाहेंगे कि इस तरह के हालात ना हो, लेकिन इक्का दुक्का अगर कहीं हो जाए तो बच्चियों के पास, दूसरों के पास एक जगह होनी चाहिए जहां पे वो इन चीजों को दर्ज कर सकें। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बदकिस्मती से सोशल मीडिया में जहां 90% खबरें जो है वो सही होती हैं, 10% वो भी लोग हैं जो झूठी खबर फैलाने की कोशिश करते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अपनी हरकतों से बाज आओ। जब ये लोग झूठी खबरें फैलाते हैं तो जिन पे असली ये मुश्किल का जो उनको सामना करना पड़ता है, उनको भी फिर जो है इस झूठी खबर का खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो हम इन झूठी खबरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ये मैं उनको वार्न करना चाहता हूं। स्पीकर साहब, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो? मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो? स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज ना, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं। ना आज नहीं, टेबल हम किसी और मौके पर थपथपाएंगे, आज नहीं। तो स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को इसी चीज पर खत्म करते हुए इस हाउस के तमाम मेंबरों से गुजारिश करूंगा कि जो रेजोल्यूशन डिप्टी सीएम साहब के तरफ से हाउस के सामने पेश की गई है, आप इसको सामने रखें और मैं उम्मीद करूंगा कि यूनानिमसली इसको पास करके हम मुल्क के सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जो नाम आपने यहाँ पर पढ़ लिए, इसको हम ऑबिचुअरी रेफरेंस का हिस्सा बनाते हैं। यकीन जानिए, जब ऑबिचुअरी रेफरेंस बनाने का मौका आया, सबसे पहला सवाल मेरा ये था कि मुझे नाम बताइए। मगर बदकिस्मती ये है, जिस क्वार्टर से हमने नाम हासिल करने की कोशिश की, मुझे लगा कि उनको कुछ रिजर्वेशन थी, नाम मिले नहीं, वरना मुझे पता है। અમદાવાદમાં ઘૂસણખોરો સામે કાર્યવાહી 143 લોકો ગેરકાયદેસર રહેતા હોવાનું સામે આવ્યું। તમામ લોકોને રિપોર્ટ કરવા માટે કાર્યવાહી પણ હાથ ધરાઈ છે। પોલીસે ગેરકાયદેસર લોકો સામે શરૂ કરી છે કાર્યવાહી। અન્ય લોકોના દસ્તાવેજની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। એમાંથી આપણે અત્યાર સુધી કુલ 143 એટલે 143 ઇલીગલ ઇમિગ્રન્ટ્સ આપણે જાણવામાં મળ્યું છે અને એમની આગળની તજવીજ ચાલુ છે અને જે બાકીના શકમંદ છે એમના અમે ડોક્યુમેન્ટ્સ ચકાસી રહ્યા છે। પાલનપુર અને ડીસામાંથી ગેરકાયદેસર રહેતી 2 બાંગ્લાદેશી મહિલાઓ ઝડપાઈ છે। પાલનપુરના બસપોટ વિસ્તાર અને ડીસાના ગવાડી વિસ્તારમાંથી એસઓજીએ 2 બાંગ્લાદેશી મહિલાઓને પકડી પાડી છે। બંને મહિલાઓએ વગર પાસપોર્ટ અને વગર વિઝાએ ભારતમાં પ્રવેશ કર્યો હતો। એસઓજીએ બંને મહિલાઓને લઈને તપાસ હાથ ધરી અને બંને મહિલાઓને બાંગ્લાદેશ ખાતે ડિપોર્ટ કરવામાં આવશે। જમ્મુ કાશ્મીરના પહલગામમાં થયેલા આતંકી હુમલાની રાજકીય સ્થિતિ પર અસર થઈ રહી છે। કચ્છથી ધાર્મિક યાત્રાએ ગયેલા 37 લોકોને પાકિસ્તાને પરત મોકલ્યા છે અને કચ્છના મહેશ્વરી સમાજના 37 લોકો પાકિસ્તાનના સિંધ પ્રાંતમાં આવેલા યાત્રાધામોની મુલાકાતે ગયા હતા। 10 દિવસ પહેલા પાકિસ્તાન પહોંચેલા કચ્છના આ સંઘને પરત કચ્છ આવવાની ફરજ પડી। પાકિસ્તાનના મકલી, ઠઠા, ઠરઈ, સેણી સહિત 4 સ્થળોએ મહેશ્વરી સમાજના ઇષ્ટદેવોના યાત્રાધામ છે। ગાંધીધામથી વાઘા બોર્ડર થઈ અને કરાચી પહોંચેલા યાત્રાળુઓને મહેશ્વરી સમાજવાડીમાં આવકાર અપાયો હતો, પરંતુ પહલગામની ઘટનાના કારણે પાકિસ્તાન સરકારે પણ ભારતીય પ્રવાસીઓને પરત મોકલ્યા છે।
પાદરા તાલુકામાં 300 જેટલા દબાણોનું ડેમોલિશન કરાયું છે. દબાણ હટાવવા જતા તંત્ર સામે લોકોએ વિરોધ નોંધાવ્યો. પોલીસ અને લોકો વચ્ચે ઘર્ષણનો માહોલ સર્જાયો. તંગદિલી સર્જાતા પોલીસનો મોટો કાફલો ઉતારી દેવાયો. ગોંડલ શહેરમાં ગતરોજ રાજકીય અને સામાજિક વર્ચસ્વની લડાઈ જોવા મળી હતી. ગણેશ જાડેજા અને અલ્પેશ કથિરિયાના સમર્થકો સામસામે આવી ગયા હતા. અલ્પેશ કથિરિયાના સમર્થકોની કારમાં તોડફોડ કરવામાં આવી અને જે મામલે પોલીસે બંને પક્ષ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી. ગતરોજ થયેલી બબાલને લઈ ગોંડલ સિટી બી ડિવિઝન પોલીસે 10 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા. સમગ્ર મામલે પાટીદાર અગ્રણી પરસોત્તમ પીપળિયાનું નિવેદન પણ આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું છે કે ગોંડલની લડાઈ આંતરિક લડાઈ છે. એક પરિવારનું જે વર્ચસ્વ છે તે વર્ચસ્વ તોડવાની આ લડાઈ છે. ગોંડલની ઘટના છે એ વર્ચસ્વ તોડવાની લડાઈ છે. વર્ષોથી આ જે વર્ચસ્વ એક પરિવારનું છે એ વર્ચસ્વ તોડવા માટેની આ લડાઈ છે. એટલે આને કોઈ જ્ઞાતિ સાથે જોડવી તે મારી દ્રષ્ટિએ ઉચિત નથી. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.